टॉकिंग अबाउट, हमने ये देख लिया था कि व्हाट वाज हैपनिंग इन 2004-5. सो इन 2000 वाज लाइक शाइनिंग इंडिया. Right, and overheating economy, optimistic, right? Across the economy, across the world, everybody was optimistic in the sense that there will be returns, right? Now what happens because of this bank industrialist, these were giving loans, इसको समझना थोड़ा सा, and these were investing. Right. Now what happens? The vicious cycle starts from here. These investments, after a particular point of time, started defaulting NPAs. There were no returns. When there were no returns from these investment, that means it led to balance sheet of ये पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की. They were red, right? लॉसेस बैलेंस शीट, पहले तो नहीं की बैलेंस शीट में आएगा लॉसेस इंडस्ट्री में. देन दे डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट्स ऑफ बैंक्स. Their balance sheet also become red, right? That means the balance sheets of the bank and the industries were red. That's why it was referred to as twin balance sheet. Problem. Clear? So twin balance sheet problem means that the banks as well as the balance sheets of the banks and the industries were in the red, right? Because there was no returns on the investment of the industries or on the investments. That's why their balance sheets were red, and because they were having no profits, and that's why banks become red. इस बार का इकोनॉमिक सर्वे एक टर्म यूज कर रहा है, zombie companies, zombies. जो इकोनॉमिक सर्वे ना वो बड़ा माइथोलॉजिकल चीज़ें उठाता है. अच्छा, दूसरा आप लोग ना इकोनॉमिक सर्वे में स्टार्टिंग में जो चैप्टर के वो दिया होता है, एक कुछ किसी का स्टेटमेंट टाइप से कहीं से उठाता है, उनको थोड़ा समझा करिए. बिकॉज माइट बी ए प्रोबेबिलिटी दैट सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एथिक्स. उठा सकता है वो, राइट? तो zombie companies, I am coming to that. So it becomes your twin balance sheet problem, correct? Now what happens? This was a normal phenomenon which was happening across the world, right? And in which you see that companies were failing and these banks were failing. Lehman, the best example. European countries, Greece is the best example, right? ग्रीस की कहानी पता है ना? ग्रीस की कहानी पढ़िएगा आप. ग्रीस डिफॉल्टेड, सोवरेन डिफॉल्ट, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी जब मैं आई विल बी डिस्कसिंग बॉन्ड मार्केट, तब थोड़ा समझाऊंगा मैं उसको, ठीक है? ग्रीस डिफॉल्ट, सोवरेन डिफॉल्ट ऑफ द ग्रीस, उसको पढ़िएगा. मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए. Right. So what happened? Banks were red, no profit for banks and no profit for industry. इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे इसको ना, आप इन्वेस्टमेंट बोलिए. Investment is the best word, not industry.
But did you find any bank collapse in India during that time? No. Right. Though industries collapsed to an extent, there were some of the industries losses उनके बढ़े, but bank collapse कोई नहीं हुआ. There is a term bank run. What is bank run? When all the people come to withdraw money from. When there is a pessimistic ecosystem across the economy and everybody is thinking आज बैंक बंद होने वाला है, पैसा निकाल लो जितना निकालना है, right? So this situation has been in the West, especially US. आप जब वो पढ़ते हो ना मॉडर्न हिस्ट्री वाली बुक, जो वर्ल्ड वाली हिस्ट्री है, उसमें एक पिक्चर भी आती है, वो आपको लाइन दिखा रहा है, वो लाइन लगी हुई है 1900 जब 1928 को वो दिखा रहा है ना, 2830 का जो ग्रेट डिप्रेशन जब वो दिखाता है, तो उसमें एक पिक्चर है एनसीईआरटी में, वो लाइन लगी हुई है, देखना, पता नहीं पुरानी वाली में होगी लेकिन है, वो इमेज है, मेरे को ध्यान है वो इमेज है. तो दैट इज़ बैंक रन. Everybody is going for the bank for withdrawing the money because they are anticipating that bank will be, they will default in paying the money, right? That's why they are looking for the banks. तो investment, अच्छा दूसरा nature of investment, ठीक है. इंडिया के बारे में कहा जाता है कि banks across the world failed, industries across the world failed. Industries बोले तो investment, exactly investment, but it was unique for India in the sense that there was a twin balance sheet problem, but it did not give rise to the issues like bank run. It did not give rise to the complete collapse of the economy as was happening in the European countries. Greece default हो गया. आपको एक क्वेश्चन भी आया था उस वक्त, पिग्स इकोनॉमीज, पोर्टुगल, ग्रीस, स्पेन, इटली, राइट, पिग्स कंट्रीज उस वक्त बोला गया. ये पता एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी कभी ना इस तरह के एक्रोनिम्स जो आते हैं ना, ठीक है, ऐसे एक्रोनिम्स का ध्यान दिया. यूपीएससी ना बहुत अजीब सी चीज़ें उठाती है, बहुत अजीब चीज़ें उठाती है. जो चल रहा होगा ना, आप सुनेंगे न्यूज़ में कहीं वो पिग्स बोले जा रहा है, तो आपको क्या है, ठीक है, वो आपको ना पिग्स ही देगा वहाँ पे, ठीक है, और फिर वो आपसे समझना चाहेगा है क्या ये बीमारी. अगर आपको पता होगा पोर्टुगल और ये सब है कहानी तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कहोगे यार ये पिग्स कब हो गया, राइट. तो दिस यू हैव टू टेक नोट ऑफ, ठीक है. वो ऐसे एक्रोनिम्स पे कई बार क्वेश्चन आया यूपीएससी में, ठीक है. एक बार ये जब ईएमईज वो बोलता है ईएमईज, अब आपको कभी कभी वो डिफाइन नहीं करता है, वो नॉर्मली करता है लेकिन कभी कभी नहीं भी करता. पिग्स के बारे में डिफाइन नहीं किया था उसने, ठीक है. तो ऐसे एक्रोनिम का ना थोड़ा ध्यान रखिएगा. तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, वी हैव टू स्टार्ट विद द नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट. What was the nature of the investment done in the West and done in the country like India? The nature of investment in US, this investment was in which sector? Housing. This sector is actually non-productive sector. हाउसिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है बताइए मेरे को. आप 10 घर लेके बैठे हुए हैं, 8 उसमें से खाली हैं. What is the effective output? Effectively, you have blocked the capital. If you are not earning any rent on that, you have blocked the capital. And it's not about your capital only, it's the capital of the country. If you have invested that money anywhere else, वो है ना money multiplier, right? Then it would have resulted into money multiplier on the continuous basis, on a recurring basis. अभी आपने उसको ब्लॉक कर दिया पैसे को, which is very much disastrous for the economy. और ब्लॉक नहीं कर दिया आपने, जब आपका ये कोलैप्स हो गया ना, आपने उस पैसे को जीरो कर दिया इफेक्टिवली. आगे समझ में? क्योंकि सपोज करिए आपने 50 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाया, ये टोटल जीडीपी का पार्ट होने वाला था ये 50 करोड़, जिसको आपने यहाँ पे आके जीरो कर दिया. यानी आपने 50 करोड़ को एक तरीके से क्या किया, ये 50 करोड़ ना, अगर कहीं सपोज करिए आपने 50 करोड़ का फैक्ट्री लगाया होता, ठीक है, इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ स्टार्टअप एंड इट वाज गिविंग अ रिटर्न ऑफ 10%, 20%, तो उसका ना पर मंथ ही वो आपको, सरकार को टैक्स भी जा रहा है उसमें. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली अबाउट योर इनकम. नाउ सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप अपने 100 रुपये में से 30 रुपये सरकार को दे रहे हैं, तो आपकी 100 रुपये की जो कमाई हो रही है ना, उसमें सरकार की 30 रुपये की कमाई हो रही है, 10, 20, 30. ये ध्यान रखिएगा.
इट्स नॉट ओनली द कमाई ऑफ योर्स, इट इज द कमाई ऑफ द सरकार ऑल्सो। ये गणित थोड़ा ना वो आपका ही पैसा है। इफेक्टिवली जो द पीपल हु आर इन 30% स्लैब, इफेक्टिवली दे आर पेइंग एटलीस्ट 60 to 70 एटलीस्ट 50% इन द टैक्सेस। आप सुबह से जब वो चाय बिस्किट खाना स्टार्ट करते हैं ना, आप 10 से 15% टैक्स वो दे के आ रहे होते हैं वहाँ पे। सबसे पहले आप इनडायरेक्ट टैक्स ही दे के आते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवली आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, हर जगह वो आपसे ना टैक्स ले रहा है। तो सरकार जो टैक्स देने वाला है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं ना कि वो सही बोल रहे हैं कि टैक्स देने वाला ना परेशान हो रहा है। यू आर पेइंग द टैक्सेस, आपने टैक्स दिया, रोड पे गए, फिर टोल दिया। यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, you are paying again, you are paying GST on the medicine, right? You are going to the education, you are paying GST on the fees, right? Everywhere you are paying the GST. You are availing any services, उस पर आप GST दे रहे हैं। Are you getting my point? That means you are paying taxes, taxes, taxes. तो सरकार को उसमें बहुत फायदा है। तो सरकार wants, वो बोलते हैं ना, एडम स्मिथ बोलता है कि the money घिसना, पैसा घिसना चाहिए। That means it should circulate. पैसा चलना चाहिए, वो मनी मल्टीप्लायर है वही, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में उसको मनी मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, ठीक है। मनी सप्लाई बोल रहे हैं, लिक्विडिटी बोल रहे हैं। तो एडम स्मिथ ने उसको वैसे बोला था कि घिसना चाहिए, इट शुड बी इन द सर्कुलेशन, राइट। तो यहाँ का जो इनका इन्वेस्टमेंट था, दैट वाज इन द हाउसिंग सेक्टर। दैट मीन्स कंप्लीटली नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, राइट। हमारे यहाँ का इन्वेस्टमेंट देखिए आप, अभी मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इन्वेस्टमेंट की। आर इन्वेस्टमेंट वर इन द फील्ड ऑफ पावर, मैक्सिमम वॉज इन द पावर सेक्टर, स्टील, रोड्स, टेलीकॉम, इंश्योरेंस। All these sectors are infrastructure, and most of this resulted, ठीक है, उस तरीके से आपका ग्रोथ नहीं हुआ। यू आर एंटिसिपेटिंग 10% होगा, 20%, इट डिडंट गो इन दैट वे, बट यस दे वर नॉट टर्न इनटू जीरो लाइक दैट थिंग। You getting my point? It grew at with 2%, 3%, 4%, but it was not zero at all. That's why twin balance sheet problem of the world or at that time was very much unique to India. It was Indian type of twin balance sheet problem. Right? Problem was there. It can't be said that everything was like which was happening prior to 2004-5, but it was something unique to India because most of the investments were in these infrastructure field. And सबसे बड़ा beauty क्या है? If you again try to compare the infrastructure investment of China at that time, because some might say that China also invested in infrastructure, right? But why China went into the recession? Can anybody explain? Why China went into the recession of the Beijing Olympic? Beijing Olympic 8 में हुआ था ना? If I am not wrong. नहीं पता तो आप देखिएगा कब हुआ था बीजिंग ओलंपिक्स। Due to lack of demand, maybe because China was primarily an exporting country. हाँ, Demands across the world were reducing. हाँ। because एक्चुअली उससे भी ज़्यादा एक पॉइंट ये था, लिक्विडिटी, ओवर सप्लाई। चाइना में अभी आप वहाँ पे देखेंगे ना, वहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस बिकॉज दिस ओलंपिक, वहाँ इतना टाउन्स बना दिए गए, इतना एयर स्ट्रिप्स बना दिया गया, इतना फ्लाईओवर बना दिए गए, दैट मैनी ऑफ द टाउन्स बिकेम घोस्ट टाउन्स, लाइक बिकॉज सप्लाई का भी एक लिमिट है ना, डिमांड का एक लिमिट। दूसरा, व्हाट इज सेइंग दैट दे आर एक्सपोर्ट ड्रिवन, वी आर कंज्यूमर कंजम्पशन ड्रिवन, राइट। तो बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर ये आपको दे स्टार्टेड द कल्चर ऑफ क्रेडिट कार्ड बांटना स्टार्ट कर दिया लोगों को, मतलब फोर्सेबली जैसे भी उन्होंने किया एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, कि लोग खर्चा करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी इवन दे हैव स्क्रैप्ड देयर वन चाइल्ड पॉलिसी, पता होगा आपको, वन चाइल्ड पॉलिसी हैज़ बीन स्क्रैप्ड। तो ये सारी चीज़ें, एंड देन दे स्टार्टेड मोटिवेटिंग पीपल कमिंग टू द टाउन्स, कि लोग वहाँ पे आएँ, वहाँ पे डिमांड क्रिएट करें, ठीक है। तो ऑल दिस इज़
वहाँ पे इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इंडिया में तो अभी स्कोप ही स्कोप है, इंडिया का पूरा गांव खाली पड़ा है अभी, तो अभी वहाँ पे डिमांड मतलब उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए अभी हम लोग। तो अभी जो चल रहा है ना वो ओनली सिंगल सेक्टर विच इज़ लेफ्ट विद इज एग्रीकल्चर। तो इंडिया की इकोनॉमी को तो ग्रो करना ही है, ठीक है, वो एक बोलते हैं कि सेंसेक्स अभी बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो ठीक है सारी चीज़ें, बट इंडिया हैज़ द पोटेंशियल, हियर देयर इज स्कोप टू ग्रो, ठीक है, ग्रो करना ही है। वेस्ट सैचुरेट हो सकता है लेकिन हम अभी सैचुरेट नहीं हुए हैं। दिस वॉज हाउ दिस इन्वेस्टमेंट वॉज यूनिक विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। नाउ कमिंग टू द बैंक्स, व्हाट वॉज हैपनिंग टू द बैंक? We are having provisions of variable reserve ratios, right? And variable reserve ratio, cash reserve ratio, and what is another? SLR, right? What can anybody explain that the concept of VRR to an extent is demotivating the infrastructure development in the country? Can anybody explain? Or investments in the country? How will you explain that variable reserve ratios are demotivating the investments in the country or the infrastructure growth in the country? By reserving the cash, हाँ, that amount of cash will not be available for money supply in the हाँ. market, which in turn leads to lesser number of investments actually, in other sectors. right. See, CRR, what you are doing in the CRR, that you are putting, for example, if a bank is having net demand and time liability of rupees 100, then out of this 100 you have put 4 rupees out of this CRR, and this 4 rupees is lying idle, right? That means you are left with 96, and out of this 96 you are again saying that you have to put this 20 rupees, you are left with 76. So out of 100 rupees you are only in a position to invest or putting into the economy 76 rupees can be put into the economy by a bank. Clear? Now that's why many of the economists are arguing that on one point of time you are merging the banks because you want to increase their pool, ठीक है, उनके हाथ में आप कैपिटल बढ़ाना चाह रहे हैं. On the other hand, you are having the provisions of CRR and SLR. You are blocking their money. 25% of the money is being blocked by the RBI in the name of sustaining the banks, right? Now, what is the positive point of this VRR? Is there any positive point of this money lying idle with the banks? So it will prevent bank run type How? events. In case people come and try to withdraw in huge amounts, they will have a good amount of It is reserve with them. keeping in the safe side for the banks, right? If a customer comes suddenly, there is no money. वो तो आएगा, लेकिन वो इस मतलब क्यों, क्या ये सेफ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. How is it keeping the bank safe? If at all there is a liquidity deficit in the bank, they can use it. वो कैसे होगा, लिक्विडिटी डेफिसिट कैसे होगा? More number of non Withdrawal sheets. हाँ, सी bank. देखिए होता क्या है, सी द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीए हो, जब बैंक लोन देता है तब क्या होता है, ये प्रैक्टिकल है, कहीं लिखना नहीं है आपको, इसको समझ लीजिए आप. देयर इज अ टर्म प्रोविजनिंग ऑफ मनी, प्रोविजनिंग ऑफ करेंसी बोलते हैं उसको, या फिर प्रोविजनिंग रेशो करके भी बोलते हैं इसको.
तो प्रोविजनिंग रेशियो में क्या होता है, व्हेन वेदर वी हैव डन टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 कैपिटल, किया था ना? नहीं किया? नहीं किया। बेसल 1 बेसल 2 नहीं किया है? नहीं किया। अरे अच्छा, नहीं किया है क्योंकि वो आई वॉज रेफरिंग टू द बेसिक्स ओनली, ठीक है, नहीं कराया होगा, ठीक है। देखिए टीयर 1 कैपिटल जो एक टर्म है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये पता है? ये तो पता होगा, ये तो शायद कराया मैंने, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। सी व्हेन अ बैंक इज गिवन लोन टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसमें अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला लोन तो वो सरकार को दे रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो भी तो लोन ही है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरा वो हाँ पीएसएल को दे रहा है फॉर एग्जांपल। तीसरा उसने इंडस्ट्री को दिया, इंडस्ट्री में भी क्या किया, वो उसके फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगा रहा है, वो उसके एनबीएफसी को उसने दिया, वहाँ पे एक कोई सिक्योरिटाइज लोन होगा, नॉन सिक्योरिटाइज लोन होगा, ठीक है। उसके बाद उसने कोई कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसने कोई रियल एस्टेट में कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, एंड नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर देयर, राइट। तो जैसे आप अगर एलआईसी को देखते हैं तो उसका ना वो ऐसे नहीं है, उसके बहुत इन्वेस्टमेंट अलग अलग होते हैं, उसने इंस्टीट्यूशनली कहीं लगाया होता है, कहीं पर ज़मीनें खरीदी होती हैं, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं इनकी। नाउ सी इफ़ यू सी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक ये गारंटी रहती है कि देयर इज़ गारंटी दैट 100 रुपये उसने दिया है तो 100 रुपये की गारंटी है, 100 रुपये उसके पास वापस आना है, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ बैकिंग, डोंट वरी, वी विल पे यू 100 रुपीज़, दैट मीन्स देयर इज़ 0% चांस ऑफ डिफॉल्ट। क्लियर? Now what happens in different cases, that bank depending upon the susceptibility or the vulnerability of the person to whom it had borrowed. सपोज करिए वो इंडस्ट्री को देता है तो वो कुछ इंडस्ट्री में ये मान के चलता है कि भाई मैंने ये मानना है कि इसमें मेरे को ना 100% चांस ये हो सकता है कि मेरे को इसमें पैसा ना मिले, ये भी मान के चलता है, राइट। और कुछ में मानेगा वो 75% मिलेगा, कुछ में मानेगा मेरे को 25% मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इसके बेसिस पे वो ये बनाता है कि मैंने इतना लोन दिया है, ठीक है। सपोज करिए उसके पास टोटल था 100 रुपीज़, ठीक है। आउट ऑफ दिस 100 दे हैव गिवन अ लोन ऑफ फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़। Out of this 50 rupees, 20 rupees was given as loan to the person like Malya, right? तो ये क्या करता है, this 20, इसके पास बचा कितना 50, ठीक है। तो ये 50 बचता है, तो ये इस 50 को पूरे को लोन नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। They have to have provision of that money which has been given in the form of loan, and it can be default. It can be a default. यानी इस 50 रुपये जो इसके पास बचा है ना, इस पूरे 50 रुपये में से 50 रुपये को लोन नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से क्या करेगा, सपोज करिए 50 में ये इसने 50 जो दिया था, इफ़ आउट ऑफ दिस 50 he is having the surety that this 30 will come back to me at any cost, then what he will do, this 20 is susceptible, then he will be having effectively 30 rupees in the form of loan। ध्यान रखिएगा, आया समझ में? इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो राइट ऑफ और वेव ऑफ का जो फंडा आता है ना, वो क्या है। पहले ये समझ में आया कि नहीं प्रोविजनिंग क्या है, आया कि नहीं? देखिए बैंक is having 100 rupees total NDTL. Out of this 100 rupees he is giving 50 rupees as loan। ये इसने लोन दे दिया, राइट।
this loan, when he started analyzing the loans, he assumed that, or he analyzed that out of this 50, I will 100% get 30 rupees. सारा कैलकुलेशन करके उसने कर लिया कि जो हमने माना जैसे भी कैलकुलेशन था, and he is assuming that there might be a problem in getting 20 rupees back. ठीक है, क्लियर है. Now what the bank will do, because this 20 rupees is doubtful, that's why this bank will have a provision of rupees 20 out of this available 50 rupees. उसके पास अभी 50 रुपया है ना, तो what it will do, it will minus this 20 rupees out of this 50 rupees and will only say that I can give further loan of rupees 30. He will not give loans of rupees 50 to the people. For safe side, it will- For the safer side, this 20 rupees will be acting as a buffer, and it is also said to be provisioning. Sir, banks will not give loans without keeping any assets for, right? हाँ, वो तो है. They can liquidate that assets also. Then why it will be risk to banks? देखिए, वही जो अभी आप पढ़ेंगे ना, जब हम एनपीए को पढ़ेंगे तब समझेंगे उसको जो आप बोल रहे हो. मैं बता, यूएस में क्या हुआ, बेचो आप घर जाके, आपने जिसको लोन दिया है, हर किसी को, जिसको आपने 100 लोगों को लोन दिया, एंड एवरीबडी इज हैविंग 4 and 5 houses. नाउ बैंक इज हैविंग 500 houses. But it not happens like regularly. इट हैज़ हैपेंड, दैट इज द प्रॉब्लम. ये हुआ है तभी तो डिस्कस कर रहे हैं हम. Discussing worst case scenario. The housing bubble, it has happened. It's nothing hypothetical. It has happened. 2008, such recessions are once in a century, two in a century. It's not regular. 2008 में हुआ, अभी तो 12 साल भी नहीं हुए, पैंडेमिक आ गया. ठीक है, तो ये that is different story, but this is what has happened, and that's why we are discussing. अभी तक हम उससे पार नहीं पाए हैं. Still we are struggling to get out of that. अभी जो आ रहा ना बैड बैंक, व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर हैज टॉक्ड अबाउट, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम 2016-17 के सर्वे ने उसकी बात की है, एंड नाउ वी आर इन 2021. अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए 5 साल में कि बैंक बैड बैंक होना चाहिए नहीं होना चाहिए. रघुराम राजन कुछ और बोल रहे थे, उर्जित पटेल कुछ और बोल के गए, ठीक है, रंगराजन कुछ और बोल रहे हैं, कौशिक बसु कुछ और बोल रहे हैं, एंड एवरीबडी इज अ लर्नेड पर्सन. ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि इसलिए कभी कभी बोला जाता है ना कि चाइनीज़ जो पॉलिसी ऑफ वो है ना ऑटोक्रेसी वाली, वो सही है. इसलिए कुछ लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं कि वो ना डिक्टेटोरियल रिजीम इज़ रिक्वायर्ड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज एन नंबर ऑफ मल्टीट्यूड हेड्स आर इमर्जिंग इन डेमोक्रेसी एंड एवरीबडी इज हैविंग हिज ओन वॉइस. ये प्रॉब्लम 5 साल में अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि बैड बैंक बने. अभी तो यही नहीं पता कि बनेगा. अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बोलता है बैड बैंक के बारे में. फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट में बोलती हैं एआरसी के बारे में, राइट. दोनों एक ही चीज़ें हम पढ़ेंगे क्या हैं. वहाँ पे वो बोलती हैं कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों को आना चाहिए, और जो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है वो बोलता है कि केवल सरकार को ही आना चाहिए. उसमें एक दिन पहले आया है वो बजट, वो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है उससे, बजट से. दोनों ही अलग बातें बोल रहे हैं. अब बताइए आप क्या मानेंगे. तो चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है. ठीक है, तो हैं, हाँ, इसलिए क्या है ना, तो ज़्यादा ना डोंट अप्लाई योर माइंड इतना ज़्यादा. आप चीज़ों को समझिए, करिए बस. वो डोंट गेट इमोशनल. ठीक है, वो रिसर्च नहीं करना है आपको, बस चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए. ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनको आपको सिंपल करके आगे बढ़ना. ये नहीं आना कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है, जो आपको ना यूपीएससी का मतलब है, दैट्स इट. आपको क्या हुआ लेमैन के साथ में, यू आर नॉट सपोज टू गेट इनटू दैट. बट हाँ, क्राइसिस हुआ था, हाउसिंग बबल था, बैंक रन वाली पोजीशन थी. आपको ट्विन बैलेंस शीट के रेफरेंस में पढ़ना है उसको, दैट्स इट. ठीक है, ज़्यादा नहीं. तो आपने क्या किया, यू आर डूइंग द प्रोविजनिंग. दैट मीन्स अब क्या हुआ कि यहाँ पे अभी तक मैंने ये कहा कि बैंक ये मान के चल रहा था कि 20 रुपीज़ कैन बी डिफॉल्टेड. ठीक है, अब when it defaulted, that means it got converted into NPA. क्लियर है. तो इसका मतलब ये हुआ,
more and more NPAs are generating more and market. So how do we relate capital adequacy ratio to Capital adequacy ratio is basically मैंने जो बताया ना tier 1 और tier 2, इसमें क्या है ये आपको ये बताता है, ये होता है आपका मेन कैपिटल और ये होता है आपका टीयर 2 कैप, वो मतलब सप्लीमेंट कैपिटल बोलते हैं इसको। राइट, सप्लीमेंट कैपिटल। इसमें क्या है कि इनका एक रेशियो ऐसा लिया जाता है, यू शुड हैव कैपिटल विद यू, इट इज द रेशियो ऑफ टीयर 1 टू टीयर 2। देयर शुड बी सर्टेन कैपिटल विद यू, ठीक है, फॉर द हेल्थ स्टेटस ऑफ योर बैंक। उतना कैपिटल आपके पास में होना ही चाहिए, इट शुड बी द रेशियो ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2। राइट, वो डिफाइन करता है आपका बेसल 1 एंड बेसल 2, ठीक है, यानी फॉर सस्टेनिंग द हेल्थ ऑफ द योर बैंक, राइट, यू शुड हैव सर्टेन लिक्विडिटी विद यू, बैंक शुड हैव सर्टेन लिक्विडिटी विद यू। ये इनके ना डिफाइंड फॉर्मूले, जैसे वो बोलता है कि एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट एसेट, हाइब्रिड आपका इन्वेस्टमेंट है कुछ, ठीक है, तो ये ना मैं आपको बताऊंगा फिर। ये टीयर 1 टीयर 2 आपको पता होना चाहिए क्योंकि आता है, प्री में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं ना पूरा भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी, तो मैंने बोला है कि आई विल टेक ऑनलाइन क्लास जैसे भी होगा, ठीक है। टीयर 1 एक्चुअली मैंने ना इसलिए नहीं कराया, मेरे को ध्यान आ गया कि आई वॉज आस्क्ड टू हैव बेसिक थिंग्स, तो मेरा एंटिसिपेशन ये था whosoever is taking the class further will be covering all these things, some complex things, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज, अभी इस बार यूपीएससी ने दिया है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिया था लास्ट टाइम इस बार यूपीएससी में, ठीक है। उसके अलावा लिवरेज रेशियो, ठीक है, ये सब इसी में है, टीयर 1 टीयर 2 के आसपास। ये बेसल रिफॉर्म्स जो बोलते हैं उसमें है, ये मैंने नहीं कराया, मेरे को ध्यान आ गया, ठीक है। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। तो वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया NPA वाला फंडा। इसका मतलब ये हुआ, इफ मोर एंड मोर NPAs आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स लेस एंड लेस लिक्विडिटी इज विद द बैंक टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ द लोन्स, पहली चीज। अब इंडिया के केस में क्या हुआ कि वी वर टॉकिंग अबाउट CRR and SLR। CRR and SLR are disallowing banks to give total 100 rupees in the form of loans। ध्यान रखिएगा, यानी outrightly it is allowing banks only to give 75 rupees in the form of loans, यानी एक बफर तो 25 रुपीज़ का आपको यहीं से आ गया। क्लियर है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली ये जब रिसेशन था 2007-8 में, उस वक्त 2-3 डिस्कशंस बड़ी तेज़ी पे थे। एक तो कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी का, राइट, कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी का एक डिस्कशन चल रहा था उस वक्त। दूसरा उस वक्त डिस्कशन था यूनिवर्सल बैंकिंग का। तीसरा डिस्कशन था वेरिएबल रिजर्व रेशियो को खत्म करने का, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिसेशन तीनों ही पे डिबेट अब बंद हो चुकी है, ठीक है। यूनिवर्सल बैंकिंग की जगह अब इन्होंने, आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर, नाउ दे हैव मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इज गोइंग ऑन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। दिस इज नो मोर रिलेवेंट राइट नाउ एंड दिस इज ऑल्सो नो मोर रिलेवेंट राइट नाउ, ठीक है। अब लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इज चेंजिंग इट्स एटीट्यूड एंड दे आर मोर फोकसिंग ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे आर इन नीड ऑफ 102 crores, that is 1 trillion by 2025 for the infrastructure. So let's see what they will do, right? Either they will be having that money by taking it through these asset monetization company and all that, but that has to be seen, right? तो इसका मतलब ये हुआ, this VRR
this regulation is not is ensuring that banks are not becoming adventurous. They are not taking high level risk, right, while giving money to the people or the industrialist, right. दूसरा they are coming up with the concept of DFI. तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया. So the twin balance sheet problem in the Indian context was unique to India because on the industrial side or on the investment side, our investments, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये बड़ा ही यूनिक चीज़ है क्योंकि नॉर्मली सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, क्योंकि ट्विन बैलेंस शीट का इशू अभी ख़त्म नहीं हुआ है. अभी भी आप डिस्कशन सुनते होंगे. इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार जिक्र किया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ख़त्म हुई ही नहीं है. Why unique to India? Other countries also there should be can be a problem of twin balance sheet. हाँ, मैंने बोला ना सब जगह थी ये प्रॉब्लम. मैंने आपको यूएस से स्टार्ट किया, यूरोप से स्टार्ट किया. आई एम सेइंग दैट दिस प्रॉब्लम इज यूनिक टू इंडिया इन द सेंस दैट वहाँ पे दोनों चीज़ें कोलैप्स हुई हैं, बट इट डिड नॉट टेक प्लेस इन इंडिया. ठीक है, वी आर हैविंग ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बट वी डिडंट कोलैप्स. नाइदर आर देयर वाज सिचुएशन ऑफ बैंक रन नॉर देयर वाज द कोलैप्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड. दे वर स्टिल रिटर्न्स. प्रॉब्लम था बट नॉट एट दैट साइज as was happening in the West. That's what I'm saying. That even Economic Survey of 2016-17 says that the twin balance sheet problem in India was unique in these two senses, right? It was not because in the West they were facing generalized problem कि वहाँ पे बैंक रन हो रहा है, वहाँ पे बैंक कोलैप्स कर रहा है, वहाँ पे सारे जो सेक्टर जहाँ पे पैसा गया था वो कोलैप्स हो गया. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, हुआ तो कम हुआ. ठीक है, that's why it is unique to India. उसका रीज़न बताया उसका. Now वे आउट. व्हाट इज द वे आउट? इसका जो इन्होंने सोल्यूशन किया, क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट? एनी आइडिया व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय आरबीआई? देखिए, हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, राइट, इज द रिसेंट डेवलपमेंट. What else? RERA, right? Any other thing? Merger of banks. Merger. Prompt corrective actions. Bad banks. Bad banks, yes. देखिए, the RBI came up with certain stringent rules. ठीक है. For example, they started regular asset quality review, right? Asset reviews, asset quality reviews. It was done very frequently after this issue, when it was observed that this issue of NPAs is taking place. Then they started reviewing the quality of the assets very frequently. That means the balance sheets of banks were reviewed, right, on a very regular basis. Secondly, there was idea of SDR, structuring of debt, राइट. इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने एक वर्ड यूज किया है, एक वर्ड का एक चैप्टर है, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस. Regulatory forbearance. This is the term used by this इकोनॉमिक सर्वे, चैप्टर एक पूरा, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस, राइट. विल डिस्कस व्हाट इट इज. ठीक है. दे स्टार्टेड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट. ठीक है. एवरग्रीनिंग ऑफ द लोन्स. Evergreening. So, but is it evergreening bad for economy in general? We'll discuss it. That's what this chapter is all about.
एवरग्रीनिंग कहीं और भी टर्म यूज़ होता है? फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। Evergreening of patents. एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स मैंने डिस्कस किया था, नहीं? कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं क्या? Kalyan से talk about. अच्छा, एवरग्रीनिंग नहीं किया, No sir. कोई बात नहीं। एवरग्रीनिंग इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इन द पेटेंटिंग। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, शायद मेंस में, राइट? देखिए हो क्या रहा है इसमें, इन सबसे पहले होता था टू डील विद सच सिचुएशन ऑफ एनपीए सराफेसी एक्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, वो सब चीज़ें हैं, उसको वो इसकी फुल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू। व्हाट वाज हैपनिंग इन द सराफेसी एक्ट, दैट दे वर बेसिकली allowing you to realize the value of the non-performing asset। ठीक है, आई थिंक somebody was asking कि NPA हो गया तो पैसा कैसे, ठीक है, you are asking, वो भी आएगा वो चीज़। सराफेसी एक्ट का देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि इससे रियल एग्जांपल, आई डोंट नो द वेदर यू आर अवेयर ऑफ नॉट, इन चेन्नई देयर वाज, पहले ना एक कंपनी हुआ करती थी देवू करके, DAEWOO, मैटीज जिसकी गाड़ी होती थी, CL होंडा, हाँ मैटीज गाड़ी होती थी, एंड दैट कार वाज मतलब बहुत ही अच्छी कार थी, और मतलब इट वाज अबाउट कि मारुति को ना वो फेल कर उस टाइप से था कि इट वाज इन डिमांड, मतलब बहुत डिमांड में थी वो गाड़ी, ठीक है। मैटीज उसकी बड़ी गाड़ी हुआ करती थी, CL होंडा करके हुआ करती थी, ठीक है, CL होंडा होती, CL होंडा जाना सीलो करके हुआ करती थी, राइट। इट इज़ हैविंग वन ऑफ द प्लांट इन नोएडा, ठीक है, एंड आई थिंक इट्स अबाउट 2000 since 2000, around 2000, that plant is closed. It has been around more than 20 years that plant is closed, and that closure led to the closure worldwide. उसके बाद चेन्नई में काफ़ी दिन तक चली थी वो कंपनी, ठीक है, बहुत दिनों तक चली, फिर क्या हुआ, फिर फाइनली everything got collapsed, right? And if you talk about its asset, that company was having its own captive power plant. Imagine, do you know captive power plants or captive mines? Concept is clear ना? No, captive means देखिए होता क्या है कि जैसे for example you are having if you are in the business of चलिए इसी को बात करते हैं, जैसे उसका कार बनाने की कंपनी है, they need power. इफ़ दे आर, तो उसमें दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन नॉर्मली व्हाट यू पीपल आर डूइंग, दैट यू आर हैविंग पावर फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो जनरेशन कंपनी, यू आर नॉट हैविंग योर ओन जनरेशन. इफ़ यू आर जनरेटिंग पावर, राइट, इट्स नॉट योर बिजनेस, बट यू हैव योर ओन पावर हाउस just for the purposes of running of your own industry. Captive means in-house, right? It is subjected to the condition that you will not use it for sale. You can sell the car because it's your business, but not power. If you are doing any business which is not your core business, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कार बनाने के लिए हुआ है अपनी कंपनी का, it's not for the power generation. You have not taken the license for power generation. Clear? That means you are only allowed for the generation of the power only for your company. Clear है ये चीज़? इस बार गवर्नमेंट ने एक चेंज किया है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में. Do you know they have changed something regarding mines? Captive mines. They have allowed the owners of captive mines to sell that output. अगर कैप्टिव माइंस आपकी जाने की नॉर्मली क्या होता है कि जो पावर कंपनीज हैं दे आर हैविंग कैप्टिव माइंस, राइट, दैट मीन्स दे कैन ओनली यूज दोज माइंस फॉर जनरेटिंग इन हाउस पावर. पहले क्या करती थी कंपनी, फॉर एग्जांपल दिस इज कंपनी ए एंड दे आर इंपोर्टिंग कोल
for power generation, right? Now what they did, they purchased coal mines, right? So the output of these coal mines, that is coal, is being used for generating power only for this company A. This is captive mines. Now what this budget is saying, that this company A, which was having captive mine and was having restriction, that the output of this captive mine can't be sold into the open market. Now this restriction has been done away with. Clear? ये अभी के इसमें बजट में है इस बार के प्रोविज़न. तो दैट मीन्स, हाँ, अभी कमिंग टू दैट पार्ट. सो दैट मतलब मैं बता रहा हूँ उसका कितना बड़ा था वो फैक्ट्री, राइट? एट दैट टाइम दैट फैक्ट्री वॉज एक्चुअली मैनी ऑफ द नोन्स फॉर इन दैट फैक्ट्री. तो वो मतलब इतनी अच्छी कंपनी हुआ करती थी कि इवन the people forget about the engineers, right? The simple workers were getting 10,000, 15,000, and engineers were like, matlab, oh, right? So, and now the situation is that it is lying closed since 20 years. 20 साल से वो ना अब जीरो हुई पड़ी है. एंड बिसाइड्स दैट्स उसमें इश्यूज, लीगल इश्यूज अलग चल रहे हैं, लीगल हर्डल्स अलग हैं. एवरीबडी, कभी कोई इंटरनेशनल कोर्ट जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है. इवन द पर्सन लाइक अमर सिंह ट्राई टू ब्रोकर दैट डील. अमर सिंह का नाम सुना है? सुनना चाहिए आपको, ठीक है. ही इज़ नो मोर राइट नाउ, ही इज़ नो मोर, बट ही वॉज अ पर्सन. वो कभी आपने देखे होंगे, वो अमर सिंह वॉज, अमिताभ बच्चन को बड़े भैया कहते थे वो, ठीक है. वो मोटे मोटे चश्मा वाले. वो लास्ट में ही वॉज इन सिंगापुर. ही वॉज हैविंग किडनी प्लेस, ही वॉज हैविंग प्रॉब्लम विद द किडनीज. He was that person in the Indian economy और Indian politics और जो भी कहिए, उनका कोई background नहीं था. And he was having connections across the sectors. ठीक है, चाहे वो मीडिया, चाहे वो पॉलिटिक्स, चाहे वो हर जगह उनका दखल था, ठीक है. And in his last days he was in BJP, ठीक है. मुलायम, मतलब he was very close to मुलायम सिंह family. Actually he was known for his corrupt practices. हाँ, corrupt practice मतलब in every sense, ठीक है. He can go up to any level, what you cannot think of, right? So he was like that only. So I want to say that the person like him who can manipulate each and everything could not resolve that issue, this issue of this company, right? So I just want to say that how complications are there in resolving the issues, right? I think this economic survey is giving a timeline that it takes at least 4.5 years, around 1500 days to wind up a company in India. This is the time which is taken by a company to wind up if everything is streamlined and smooth. ये तब की बात नहीं है जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है. दिस टाइमलाइन इज मेंशन्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे एंड इट इज़ व्हेन एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन. ध्यान रखिएगा. तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे कंपनी खोलने से ज़्यादा टफ उसको बंद करना है, ठीक है. ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, ठीक है. दैट मीन्स अब जब आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, यू आर हैविंग सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक लाइंग आइडल. अब उसका इम्प्लीकेशन देखिए. उस कंपनी में कहीं का इन्वेस्टमेंट होगा, उसका पैसा ब्लॉक हुआ, बैंक और भी इन्वेस्टर्स होंगे बैंक के अलावे. डिपेंडेंस अपॉन एम्प्लॉयज, ठीक है. ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज, एंसिलरीज जिसको बोलते हैं, राइट. इसके अलावे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज इंडस्ट्रीज. आप समझिए कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हो रहा है. और इन सब से आप देखिए इकोनॉमी, द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज ऑन द इनकम टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट.
डू यू नो दैट आई डोंट नो अबाउट दिस प्लेस इन हैदराबाद. आपको लगता है ना कि जैसे कि इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस पैंडमिक ऑन द इकोनॉमी, go to any small place. Have you, I don't know whether you people have been to Mukherjee Nagar and all these places in Delhi. I think सुना होगा, ठीक है ना, है ना, सुना है ना, ठीक है, सुना ही रहो, वहाँ जाना मत, सोचना मत, ठीक है, इट्स रियली हेल, राइट. वहाँ पे अभी सिचुएशन ये है कि जो ओवर क्राउडेड था हर समय, ठीक है, रेंट मतलब इट्स लाइक only 6/4, हाँ 10,000, right. So you are paying 10,000 and just you are sleeping and you are having a table, right, you are paying 10,000 for that. Right now the situation is that demand supply, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सारे, ठीक है, अब इसको आप समझिए, ये सब जगह वही चीज़ अप्लाई होती है. Initially what was happening prior to this pandemic, that a person who is having a house, for example he was having, वहाँ ये 50 कमरा है उसका किसी का, ठीक है, मान के चलिए 1, हाँ इट्स नॉर्मल, ठीक है, जिनका कुछ नहीं करते हैं यार वो लोग, ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है, कि दोज पीपल आर डूइंग कि वो इफ़ ही वॉज हैविंग फॉर एग्जाम्पल 50 रूम्स एंड पर रूम ही वॉज हैविंग 2 बेड, सो 100 बेड्स, ठीक है, सो 100 into 10,000, so it is 10 lakhs per month. Right, he was earning 10 lakhs per month without doing any job, right, and another beauty of this is he is paying no tax. सर क्यों ऐसे, क्यों पूरा ब्लैक में चल रहा है? या नहीं, वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ कौन आपको कौन पैसा, क्यों वो उसको वाइट में लेगा, ठीक है, दिल्ली में सर हार्टलैंड दिया तले ही अंधेरा होता है, पता है. जितना गड़बड़ दिल्ली में होता है ना, और जितना गड़बड़ लुटियंस में होता है, जो सो कॉल्ड जो हार्ट ऑफ दिल्ली है, लुटियंस दिल्ली जो है, सो कॉल्ड कंट्रोल्ड बाय दीज पॉलिटिशियंस, जितना गड़बड़ वो लोग करते हैं उससे ज़्यादा. देखिए वही है कि मतलब इट हैज़ बीन आर्ग्यूड मैनी टाइम्स के जैसे बोला जाता है ना, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन द मूवी 2 बीघा ज़मीन, एक मूवी है हिंदी में, ठीक है, उस मूवी में एक ये है बल्ला साहनी, ठीक है, मैंने भी देखी नहीं थी वो मूवी, फिर मेरे को ना कुछ लोगों ने बोला कुछ अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, तो जैसे मदर इंडिया टाइप की मूवी, ये 2 बीघा ज़मीन एक मूवी है, तो उसमें क्या है, दिस इज स्टेटमेंट, उसका भाई है वो उसको पढ़ने के लिए भेजता है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि ये जो है बल्ला सानी, ही इज़ द एल्डर ब्रदर एंड ही गॉट एन एक्सीडेंट, तो ये रिक्शा चलाता है, तो एक्सीडेंट होने पे क्या है, इनकी सिचुएशन ये है कि इनके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है एंड दे आर एट द वर्ज ऑफ द कोलैप्स, उसको दवा के लिए पैसे चाहिए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, एंड ये इसका भाई जाता है छोटा और ये कहीं से कुछ पैसे चुरा लेता है. वो सिचुएशन ऐसी होती है, चुराता नहीं है लेकिन वो उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं, सिचुएशन ऐसी बनती है. देन ही केम टू हिम, तो वो उसको बोलता है कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ, दे बिलोंग्स टू किसान फैमिली, दे आर किसान, राइट, तो वो उसको बोलता है तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, तो ही सेड, पहले तो मना कर, देन ही टोल्ड कैसे ऐसे, तो वो उसको बोलता है उसको कि मर जाना पसंद है लेकिन चोरी करना हमें अलाउ नहीं है, राइट. तो कहने का मतलब ये है, जो सो कॉल्ड हमारी जो अभी तक जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं ना, इंटीग्रिटी, ठीक है, ईमानदारी, ये पता है छोटे लोगों तक ही लिमिटेड, मैं सही बता रहा हूँ आपको. अगर कोई छोटा आदमी अप टू द मिडिल क्लास, जो जितना भी होता है ना, द रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब फॉर मी व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट दीज आर बाउंडिंग अस. बड़े जो लोग होते हैं ना, वहाँ कुछ भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बिलीव मी. आपको लगता है ना ये बड़ा आदमी है बहुत, वो उसको आप जब जितना जाओगे ना अंदर उसको समझने की कोशिश, वो उतना ही वर्स्ट आदमी होगा, ठीक है. आई एम टेलिंग यू द पर्सनल एक्सपीरियंस. तो जितना भी ये आप हमारे घरों में जो चलता है ना कि मतलब रूल्स रेगुलेशंस एथिक्स, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द मिडिल फैमिली. आप किसी छोटे आदमी को पैसा दे दीजिए ना, वो आपसे आंख नहीं मिला पाता वो शर्म के मारे, जब तक उसका पैसा नहीं दे देता वो, ठीक है. और बड़ा लोग वो करोड़ों रुपए लेके भाग जाते हैं, उनकी शर्म कहाँ आती है. दीज एथिक्स आर, मतलब मेरा तो मानना ये है कि ना, वो हमें वो जो हमारे यहाँ ना वो एक होता है घोड़ा, हॉर्स, उसके यहाँ पे ना ये बांध के रखते हैं, है ना, जस्ट सो दैट ही इज़ ओनली अलाइंड, कि गोल ही देखता रहे अपना, ना इधर उधर नहीं देखना है उसको. सो दीज आर बाइंडिंग अस. इट कैन बी रॉन्ग और राइट, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी. तो कहने का मतलब ये है,
व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इज 10 लाख रुपीज़, राइट। वहाँ पे जो पैसा कमा रहा है, अब इसको इकोनॉमी को समझिए आप। अब ये जो 10 लाख रुपए ना, अच्छा वो जो बंदे वहाँ पे जो लड़के रह रहे हैं, ये 100 जो बंदे हैं, ये पता है वहाँ क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग विद द मॉर्निंग, सबसे पहले न्यूज़पेपर वाला आता है, हॉकर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में वो चाय पीने आता है, ठीक है। उसके बाद में उसके यहाँ मेड आती है, ठीक है। उसके बाद में वो जूस पीने जाता है। छोटे से कमरे के लिए फिर मेड? नहीं, खाना वो किचन होता है। नहीं तो आप टिफ़िन मंगवाओ, आप टिफ़िन मंगवाओ। सफाई करने तो मेड आएगी, सफाई वो खुद नहीं करता, सफाई नहीं करता, ठीक है। वो 100 में से 10% आर ओनली क्लीनिंग देयर रूम्स, ठीक है। स्पेशली लड़कियां कर लेती हैं, लड़के नहीं करते, वहाँ मेड ही आती है, ठीक है। नहीं, एक रूम में 2 बेड हैं। नहीं, सफाई नहीं करोगे तो गंदा रहेगा, वो तो मकान मालिक आपसे चार्ज करेगा, वो चैरिटी नहीं है, ठीक है। वो आई एम टेलिंग द बिजनेस हो क्या रहा है। जूस पीने गया, वो हो सकता है वहाँ से वो कहीं किसी दोस्त के यहाँ भी जाना, वो रिक्शा भी यूज़ करेगा, वो ऑटो, ठीक है। शाम को वो कोचिंग जा रहा है, ठीक है। कोचिंग के टाइम पे जूस पीना है उसको, हाँ हाँ, बुक्स, फ्रूट्स, बुक्स, ठीक है, स्टेशनरी। नाउ सी, ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है ना, ही इज इफेक्टिवली रनिंग द इकोनॉमी। अब इनसे आप ना, इनके पीछे की बात करेंगे आप, ये न्यूज़पेपर वाला अकेला नहीं है, इसके पीछे अपनी एक अलग स्टोरी चल रही है। वो साइकिल चला रहा है, ठीक है। दो न्यूज़ जो इंडियन एक्सप्रेस पेपर है, अगर ये नहीं बांटेगा तो इंडियन एक्सप्रेस बंद हो जाएगा। वो पीछे से पेपर कहीं से आ रहा है, बैकवर्ड लिंकेज। वो पेपर बनाने वाला जो है वो कहीं किसी फॉरेस्ट से वो उनका कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, राइट, हाँ, ठीक है। रिपोर्टर्स इन्वॉल्व हैं। टी का अगर आप देखोगे, इसका अपना बिजनेस है, दूध है, चाय है, पत्ती है, वो दूध वाला गांव से आ रहा है, वो फिर ट्रांसपोर्ट आ रहा है। सो दिस पर्सन, आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है, लेकिन पता है जो मैंने कल भी बताया था, जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, ये सब चीज़ें इसी के आधार पे चलती हैं। द गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग ऑल द सर्वेज। नाउ सिचुएशन, द कंडीशन देयर, पेंडेमिक में ये सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं। इसका 10 लाख भी खत्म है। ऐसा नहीं है 10 लाख को वो सेव ही करे जा रहा है, ये उसको मार्केट में भी डाल रहा है। हालांकि ये है कि इन्फ्लेशनरी या कहीं भी कर रहा है, नहीं अब तो खैर डिक्लेयर करना पड़ा। 10 लाख को एक साथ ऐसे मतलब बैंक में भी जमा नहीं कर सकता ना, तो वो क्या कहीं प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है, ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत ले रहा है, खर्चे उसके अंधाधुंध है, रोज़ पार्टी कर रहा है, ठीक है, टाइप से ये सब चीज़ें होती हैं। रोज़ गाड़ी खरीदते हैं लोग, गाड़ियों को तोड़ते हैं फिर, है ना, हाँ ये होता है, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स दैट दीज थिंग्स आर रनिंग योर इकोनॉमी। अभी सिचुएशन ये है, ये 100 लोग वहाँ से हट गया, ठीक है। तो अब ये जो 10,000 था ना, ये किराया 2,000 में भी आ जाओ, 2,000 में भी लोग नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है। इसका मतलब जब यहाँ पे ये 100 लोग नहीं है तो ये कोलैप्स, ये सारी चीज़ें कोलैप्स, ये सारी चीज़ें कोलैप्स, ये सारी चीज़ें कोलैप्स, ये पीछे तक चीज़ जा रही है। तो जो सिंपल आपको अपने आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं ना, आप वहीं से समझना स्टार्ट कर सकते हो इकोनॉमी चलती कैसे है। और इसके साथ में ना ये सारे लोग लगभग टैक्स दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो टैक्स दे रहे होंगे। देखो ये न्यूज़पेपर वाला टैक्स दे रहा होगा, ये टी अगर ये रिलायंस वाले से लेके आ रहा हो तो उसने भी टैक्स दिया होगा, कहीं ना कहीं से भी लेकर टैक्स दे रहा होगा, ठीक है। दूध पे बेशक ना दे वो, ठीक है। और ये जूस वाला, ठीक है, ये नहीं दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये कोचिंग वाला तो टैक्स दे रहा होगा, कुछ ना कुछ तो टैक्स दे रहा होगा, राइट। बुक्स वाला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स दे रहा होगा, हाँ, राइट। तो दैट मीन्स हाउ इकोनॉमी इज रनिंग। अब आपने उसको ब्लॉक करके, उस पैसे को एनपी में कन्वर्ट करके वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। सबसे बड़ा नुकसान सरकार का हो गया, सरकार के पास फ्लो ऑफ फंड्स बंद हो गया, राइट। तो बैंक, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, अदर इन्वेस्टर्स, वो सारे आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। दे आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न। सो दैट्स वाई एनपीएस आर नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरा, उसके अलावा एक चीज़ और समझिए इसमें, कि बैंक के पास हम स्टार्ट हुए थे कि मैंने पहली सिचुएशन कही थी कि इसमें 20 रुपीज़ एनपीए है, ठीक है।
₹20 NPA के केस में इट कैन गिव ₹30 मोर एज लोन। दूसरा केस मैंने बोला, मान के चलिए ये NPA 30 हो गया। नाउ हाउ मच मनी कैन इट 20। व्हेन इट बिकम्स 40 देन 10. that means liquidity is going, when liquidity is going down, that means rate of interest is High. that's why NPA is not desired in the economy। अगर आप NPA बढ़ाएंगे तो आपका liquidity available to the people will be less। आ गया समझ में? This is how this is taking place। evergreening 3:30, right? 5 मिनट ब्रेक लेते हैं क्योंकि ना आई हैव told them to go at 3:30। what is evergreening? evergreening में उसमें क्या करते हैं पेटेंट वाले में? So they'll make a very minor modification and then Right. repatent. It is similarly applied to the banking loans। तो आप क्या करेंगे एवरग्रीनिंग में? क्या है कि आपको एवरग्रीनिंग में सिंपल ये है कि आप इसको ये मान के चलिए यू आर एवरग्रीनिंग ऑफ द इशू, राइट? बस आप उसको पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। एवरग्रीनिंग कोई भी कहीं भी आप एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, तो आपकी जो समस्या थी वो सदाबहार रहती है, ये मान के चलो आप। और वो कैसे रहती है? कैसे आपका NPA ही रहता है, वो प्रॉब्लम को ना दूसरी तरीके से समझा देता है हमें। आपने सपोज करिए ₹100 लोन लिया, ठीक है? आपने ₹100 लोन लिया कंपनी ए ने। जब ये ₹100 लोन लिया तो इसमें बैंक की सिचुएशन देखिए। बैंक इज सेइंग दैट दिस ₹100 हैज बिकम NPA, ठीक है? तो इसका नुकसान क्या रहेगा कि ही हैज़ टू हैव सर्टेन प्रोविजनिंग, ठीक है? सेकेंडली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि दिस ₹100 इज इन रेड इन इट्स बैलेंस शीट। सबसे बड़ा ध्यान ये दीजिएगा, ये बहुत बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा होता है कि दिस इज ₹100 विच इज़ इन द नेगेटिव। और जो जब ऑडिटर आता है तो वो ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो देखता है कि अच्छा इट्स इन रेड, तो वो चारों तरफ फिर ऑडिटर CAG कहता है कि भाई ये गड़बड़ है, राइट? समझ गया आप मेरी बात? उससे क्या होता है कि इसका ना फाइनेंसिस गड़बड़ रहते हैं सारे। अब देखिए एवरग्रीनिंग क्या होती है, ये एक अरेंजमेंट है। व्हाट बैंक इज डूइंग? बैंक इज सेइंग टू A, डू वन थिंग, आई एम गिविंग यू लोन्स ऑफ ₹200 और ₹150, ठीक है? वो बोलेगा क्या करना है इसका, डू वन थिंग के रीपे दिस ₹100, रीपे, ठीक है? ये लोन सपोज करिए लोन था, ये लोन 1, लोन नंबर 1, दिस इज लोन नंबर 2, ठीक है? स्टेटेड दैट आउट ऑफ दिस ₹200 which I am giving you in the form of the loan, bifurcate it into 2 parts, 100 and 100. Repay this ₹100, clear? अब इसका फ़ायदा क्या है? बैंक को क्या फ़ायदा होगा इसमें? उसकी बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे उसकी बैलेंस शीट में क्या आएगा? that this 100 is now converted into the asset of 200। Yes. तो ये कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। This 100 is being converted in this NPA of 100 is converted as asset of 200, ठीक है? जबकि इफेक्टिवली क्या है? इफेक्टिवली इसमें ₹100 तो खत्म ही है। Are you getting my point? This is evergreening of loans, evergreening of NPAs आप कह लीजिए, ठीक है? evergreening in the We know banking this sector। process, but the name is new for us. That's हाँ, this is evergreening, right? You have just to make that problem persistent, but in another form। This is evergreening of loans।
राइट तो आप इस एनपीए को आपने रिमूव कर दिया बैलेंस शीट से, इसको ये फ़ायदा हो गया। हाँ, दूसरा फ़ायदा ये है कि might be a possibility why this process actually these were the guidelines which were coming from the RBI, right? That means RBI was giving certain space, breather to the company as well as to the bank. Okay, at that time what was happening, the RBI was aware of the fact that across the world the situation is grim and it might be a possibility that कभी होता है ना वो बिजनेस साइकिल चल रही है भाई, ठीक है ये है, अच्छा इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी आर मतलब डिमांड हमारे आना ही आना है, तो इवेंचुअली वी विल ग्रो, तो दे थॉट दैट इट इज़ फॉर द टाइम बीइंग एंड दैट्स व्हाई everyone that is the bank as well as the company should be giving certain breather, so that's why they give certain flexibility to both. This evergreening is nothing but the flexibility है भाई, आप उनके दोनों की गलत चीज़ों को आप मतलब प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। दिस इज सेट टू बी द रेगुलेटरी फॉरबियरेंस अबाउट विच द इकोनॉमिक सर्वे 2021 इज टॉकिंग अबाउट। फॉरबियरेंस होता है सहनशीलता, राइट? दैट मीन्स यू आर हैविंग पेशेंस, राइट? यू आर हैविंग पेशेंस, यू आर शोइंग द पेशेंस डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर, क्योंकि आरबीआई इज नोन फॉर द बेटर रेगुलेशंस, राइट? डिस्पाइट दैट the regulator is showing the forbearance, patience, right? And that patience means it is allowing bank as well as the company to have certain flexibility, correct? तो अब इसका फ़ायदा कंपनी को ये हुआ। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि why you are allowing for this forbearance, right? तो वो ये बोलता है कि इट वॉज द आरबीआई स्टार्टेड विद दिस फॉरबियरेंस इन 2004-5 से स्टार्ट किया इन्होंने, राइट? सॉरी 2008 बोल रहा है वो, शायद 2008 से स्टार्ट किया। एंड तो उसने उसको ये बोला कि इट माइट हैव बी डन अवे विद इन द 2011, उस टाइम पे ख़त्म कर देना चाहिए था आपको, बट इट कंटिन्यूड अंटिल 2015, ठीक है? तो बोल रहा है कि नाउ economic survey is warning RBI or the regulatory mechanism कि whether this forbearance which started during the first quarter of that previous financial year that started in 2020, how long it will continue, whether it will continue for long or it will be discontinued as the economy has already revived. Clear? So this is regulatory forbearance which economic survey is talking about. Clear? Now coming to this, फ़ायदा इसका ये था, जैसे मैंने बताया, आरबीआई ने ये मान के चला कि सिचुएशन इस वक्त ये है, तो एक होता है प्रो साइक्लिक, एक काउंटर साइक्लिक। दिस टाइम इकोनॉमिक सर्वे इज टॉकिंग अबाउट काउंटर साइक्लिक मेजर्स, ठीक है? देखिए ये जो टर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनको ना आप कर लीजिएगा, इसलिए बिकॉज पता लगा कि मैं भी इसमें रहूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे की क्लास होंगी, टाइम डज नॉट अलाउ मी, तो इट्स बेटर, हाँ ठीक है, टू गो साइड बाई साइड। द टर्म्स आई एम यूजिंग, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग रेगुलेटरी फॉरबियरेंस, आई एम टॉकिंग काउंटर साइक्लिक या प्रो साइक्लिक, राइट? सो यू शुड गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स साइड बाई साइड, ठीक है? सो द आरबीआई थॉट दैट, देखिए फॉर एग्जांपल a company is in this situation at this point of time, right? Neither it is growing nor it is degrowing, right? Now in this situation, for example, if the company is being provided with money, might be a probability this curve can be reversed from this point of time, or if you did not allow, अगर देखिए यहाँ पे इसके पास में 100 रुपये थे, इसके पास अब इस वक्त तो पैसा है ही नहीं है ना, ऊपर से बैंक का प्रेशर, एम्प्लॉइज का प्रेशर, ठीक है? और सपोज करिए यहाँ पे आपने इसको पैसा दे दिया, तो व्हाट विल हैपन दैट दिस ग्राफ कैन बी रिवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आरबीआई वाज एंटिसिपेटिंग दिस साइन वेव कैन बी टर्न्ड इनटू हाफ साइन वेव। क्लियर? सो दिस वाज द आइडिया व्हाई this regulatory forbearance was there. But economic survey is warning again, RBI, that you should
not repeat what was done during the time of recession. Right? Clear? समझ में आ गया यहाँ तक? Be next.